عید الفطر پر دہشت گردوں کا ہرنائی میں وار، ایف سی کے 2 اہلکار شہید کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے عید کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو پیٹرولنگ کے دوران نشانہ بنایا۔ شہداء میں سپاہی یار محمد اور مہتاب خان شامل۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی راستہ جزوی طور پر بحال، 11 میں سے 1 فضائی راستہ کھول دیا گیا۔ بھارتی ایئر لائن کی دبئی سے دلی پرواز پاکستانی حدود سے گزری۔ رواں سال 27 فروری سے دونوں ملکوں کی فضائی حدود بند تھی۔ قومی سلامتی کو منی لانڈرنگ نے نقصان پہنچایا۔ مریم نواز صاحبہ، آپ کے مقدمے کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ عدالت قطری خط سے نہیں، ثبوت پر چلتی ہے۔ ڈسکا میں فردوس عاشقاوان کی مریم نواز پر جم کر تنقید۔ کہا آپ کے بھائی کو تو ملک میں آنے کو بھی تیار نہیں۔ فوج نے ثابت کیا وہ پاکستان کے لیے ہے۔ اب دیگر ادارے بھی اخراجات میں کٹوتیاں کریں۔ وزیراعظم نے خود عید منا لی، لیکن والدہ اور بیٹی کو جیل میں قید۔ نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی تنقید۔ کہا شریف خاندان کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ ملنا انتقامی سیاست کی انتہا ہے۔ عید کے دوسرے دن بھی تفریحی مقامات پر عوام کا رش۔ چڑیا گھروں اور پارکس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ کراچی میں ساحل سمندر پر عوام کا رش۔ ٹھٹا کے واٹر پارک میں عوام کا سیلاب امڈ آیا۔ لاڑکانہ میں HIV وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد 750 ہو گئی۔ عید پر بھی سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ متاثرین کی داد رسی کے لیے نہ پہنچا۔ باغ جناح چوک پر شہریوں کا حکومت کے خلاف احتجاج، مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ HIV اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ صحت کے ڈاکٹر منسٹر نے کہا تھا، صحت کا وزیر جو وفاقی ہے، کہ ہم پہلے ڈاکٹروں کو سکھائیں گے، اس کے بعد وہ علاج کریں گے۔ کہیں پہ بھی علاج کا بندوبست نظر نہیں آ رہا ہے۔ لاڑکانہ میں جو ایڈ سینٹر بنا ہوا ہے وہاں تو HIV کا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ بہاڑی میں خواجہ سرا پر نامعلوم افراد کا تشدد، چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ واقعے کے بعد پولیس پہنچ گئی، ملزمان کی تلاش جاری۔ تیز رفتاری اور غفلت کی وجہ سے آج بھی ٹریفک حادثات۔ دنیا پور میں قطب پور چوک کے قریب تیز رفتار 3 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئی، 8 افراد زخمی، خاتون اور 2 بچے بھی شامل۔ لاہور سے کراچی آنے والی قراقرم ایکسپریس فیصل آباد میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ اسٹیشن کے قریب ٹرین کی ایک بوگی پٹری سے اتر گئی، تمام مسافر محفوظ رہے۔ چند روز قبل اسی مقام پر فیصل آباد سے کراچی جانے والی نائٹ کوچ کی 2 بوگیاں پٹری سے اتری تھیں۔ ماضی کی کرپشن کے باعث معیشت تباہ ہوئی، ملک لوٹنے والے آج خود تکلیف میں ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی تنقید۔ کہا میرا تعلق PTI سے نہیں، تحریک انصاف اپنے گندے کپڑے ٹی وی پر آ کر نہ دھوئے۔ نالا لائی اور ML1 بننے کے بعد سیاست چھوڑنے کا اعلان، مہنگائی کا ذمہ دار اپوزیشن کو قرار دے دیا۔ حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دیا جائے، پیپلز پارٹی نے CEC کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف زرداری اجلاس کی صدارت کریں گے۔ مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ سہیل احمد سے سہیل بتائے گا یہ معاملہ ہے کیا؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ یہ خلجی کالونی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک شخص عصام احمد نے گھریلو ناچاکی کی بنا پر پہلے اپنی بیوی 32 سالہ مریم، 5 سالہ سلطان بیٹے کو اور 3 سالہ جو بیٹے ہیں ان کا ولی محمد، ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ تو خودکشی سے قبل اور بچوں اور بیوی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو جو اپنے موبائل سے انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، اس میں پشتو میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ قتل اور خودکشی جو میں کر رہا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے کروں، اس میں میرے رشتہ داروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے ایک مطالبہ بھی کیا ہے اس ویڈیو میں کہ قتل اور خودکشی کے بعد ہم چاروں کو ایک ساتھ دفنایا جائے۔ جی اچھا یہ بھی بتائیے گا، جیسے کہ پولیس بتا رہی ہے کہ واقعہ گھریلو ناچاکی کے باعث پیش آیا، تو کچھ مزید بتایا کہ کیا ناچاکی تھی؟ جی بالکل ناچاکی کا تو انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ ایک ویڈیو
जब पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तो जो कातिल था, बाप जो था, तो उसके साथ एक मोबाइल पड़ा था। उन्होंने जब मोबाइल चेक किया तो उसमें वीडियो में उसने कहा कि हम जाती तौर पे खुदकुशी कर रहे हैं, घरेलू नाचाकी की बिना पर ये खुदकुशी कर रहे हैं, इसमें हमारे किसी भी रिश्तेदार का कसूर नहीं है। खुदकुशी कत्ल करने के बाद आसम अहमद ने खुदकुशी कर ली। लाशों को इस वक्त सिविल अस्पताल क्वेटा मुंतकिल किया गया और पोस्टमार्टम के बाद गुर्सा के हवाले किया जाएगा। अच्छा सुहेल, ये भी बताइएगा जो आस पड़ोस के लोग हैं, मोहल्लेदार हैं या रिश्तेदार हैं, वो क्या बताते हैं? क्या इनके घरेलू हालात कैसे थे, या मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे थे? आए रोज झगड़े भी होते थे या नहीं? इस तरह है कि जब अस्पताल में हमने उनके रिश्तेदारों और जो मलेदार थे जो मैयतों को सिविल अस्पताल पहुंचाए, जब इस बारे में उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इंतहाई नफीस शख्स थे और बीवी बच्चों के साथ भी खुश थे। वजह न मालूम ना हो सकी कि आया इतना अच्छा आदमी ये इतना बड़ा इकदाम कैसे कर सकता है, पहले अपने बीवी बच्चों को कत्ल करे उसके बाद खुदकुशी करे। वो खुद इस बात पे हैरान थे कि इतना बड़ा इकदाम इसने कैसे उठाया। और सुहेल, ये काम क्या करते थे जिन शौहर इनके? ये अपना जाती कारोबार करते थे बाजार में, चूंकि ये जो खिलजी कॉलोनी ये नवाई इलाका है क्वेटा का, ये शख्स बाजार में अपना शॉर्टली ये भी बता दीजिएगा, घर में ये 2 बच्चे मियाँ बीवी ही मुकीम थे या कोई और भी रहता था? जी बिल्कुल, घर में आसम अहमद और उसकी बीवी और 2 बच्चे रहते थे। इसके अलावा उसके साथ वहाँ पर कोई भी राइश पजीर नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। एबटाबाद से आपको खबर देंगे। एबटाबाद के DHQ अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में आग लग गई। आग ने पूरे हॉस्टल को जलाकर राख का ढेर बना डाला। मज़ीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा, DHQ अस्पताल का नर्सिंग हॉस्टल जलकर राख हो गया है, वजूहात क्या बयान की गई हैं? DHQ हॉस्पिटल के नर्सिंग हॉस्टल में 4 फुट के बैठ जो आग लगी है, जिसने आलम फानन पूरे हॉस्टल को अपनी लपेट में ले रही है। रेस्क्यू 1122 ने फिर कार्रवाई करते हुए, क्योंकि ये बड़ा कंजस्टेड एरिया था हासिल था, इसके साथ मलाका काफ़ी आबादी थी, लेकिन आगे कंट्रोल कर लिया है। लेकिन हॉस्टल जो है वो सारा जल गया, उसमें सामान जो पड़ा हुआ था जल गया। इसकी वजह से छुट्टी होने की वजह से जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हॉस्टल खाली था, बंद पड़ा हुआ था, कमरे बंद थे। इसकी वजह से जो है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली तौर पर सारा जो हॉस्टल है वो जल कर राख हो गया है और मलाका आबादी को जो है वो रेस्क्यू 11 ने महफूज कर लिया, बचा लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी। फिरोजवाला की बशीर कॉलोनी में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने एक घर को भी अपनी लपेट में ले लिया। फिरोजवाला में यह हादसा पेश आया जहां पर बशीर कॉलोनी में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई है। आग ने फैक्ट्री से मुल्लिका घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। फिरोजवाला की बशीर कॉलोनी में ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ अमल है। आग की शिद्दत कितनी है और इससे कितना नुकसान हुआ है ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जो इब्तिदाई खबर है उसके मुताबिक फिरोजवाला की बशीर कॉलोनी में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई है। मोहसिन अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। मोहसिन, बताइएगा कि आग पर किस हद तक काबू पाया गया है और क्या नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं 25 नंबर स्टाफ शादरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर क्या नाम है, एक प्लास्टिक बशीर कॉलोनी में प्लास्टिक की फैक्ट्री को जो है वो बुरी तरह आग लग गई है, जिसपे कई घर भी इसने लपेट में ले लिया है और कई जानों का जाने का भी खर्चा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानी नुकसान की खबर तो नहीं मिली नहीं। और रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई की और यहाँ पर जो आग पे काफी हद तक काबू पा लिया गया है और अभी मजीद भी आग लगी हुई है और कुछ घर भी उसने अपनी लपेट में ले लिए हैं। और रेस्क्यू 1122 के जराये के मुताबिक के अभी तक किसी भी जानी और मानी नुकसान तो हुआ है, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू का अमला अभी भी आग बुझाने में मसरूफ है। ठीक है, माली नुकसान हुआ है, अभी तक जानी नुकसान की कोई इत्तला मौजूद नहीं है, जबकि रेस्क्यू का अमला आग बुझाने के लिए मसरूफ है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अली। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नाले में गैस लाइन में धमाके से खौफो हिरास फैल गया। दीवारों में दरारें पड़ गईं और फर्श उखड़ गया। इसी मकाम पर 3 माह कबल भी धमाका हुआ था। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 10 वाजिद शहीद चौक पर नाले में जोरदार धमाका हुआ। धमाका दूर दूर तक सुना गया। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। फर्श उखड़ गए, दीवारों में दरारें पड़ गईं। 2 अफराद मामूली जख्मी हुए।
अच्छा खासा बड़ी आवाज़ थी। आधा जो है फ़कीर कॉलोनी बाहर आ गया था। लेडीज़ मर्द सब रो रहे थे, चीखों पुकार हो गई थी, बच्चों की आओ पुकार थी। बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ है जिसमें हमारे 2 बंदे ज़ख्मी हुए। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 माह कबल भी इसी मकाम पर धमाका हुआ था। 3 महीने पहले भी एक जोरदार धमाका हुआ था, अब दोबारा ये धमाका आपके सामने है और यहाँ 2 बंदे जख्मी भी हो चुके हैं इस दफ़ा। अगर आपने इस पर एक्शन नहीं लिया तो ये हमारे मोहल्ले के लिए और इस एरिया के लिए बहुत नुकसानदेह है। वाक़े की इत्तला मिलने पर यूसी चेयरमैन सैयद हैदर शाह ने मुतासिरा मकाम का दौरा किया। मैं सुई गैस के आला हुकाम से अपील करता हूँ कि खुदारा इंसान के ज़िंदगियों के साथ मत खेले। ये इंसानी कीमती ज़िंदगी है, इनके साथ मत खेले। इस मसले को हल करे। आवाम का कहना है कि इस नाले के अतराफ मौजूद घरों में गैस भी नहीं आती। सुई गैस हुक्काम मसला हल करें। गफलत और तेज रफ्तारी की वजह से आज भी ट्रैफिक हादसा पेश आए। दुनियापुर कुतुबपुर चौक के करीब 3 मोटरसाइकिल टकराने से 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को मुल्तान मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में हाकिम अली, शब्बीर अहमद, रब नवाज, सलीम शहजाद, साबिर अली, शौकत अली और रेहाना बीबी शामिल है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आ रहे हैं। अवाम ट्रैफिक कानून पर अमल करें और कम उम्र लड़कों को मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना दी जाए। विहाड़ी में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर ख्वाजा सरा को तशद्दुद का निशाना बनाया और छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। चांदनी नामी ख्वाजा सरा क्लब रोड पर वाक़ अपने मकान में मौजूद था कि नामालूम कार सवार अंदर दाखिल हो गए और बेहिमाना तशद्दुद करते रहे। जख्मी ख्वाजा सरा का कहना है कि मुल्ज़िमान इसे साथ ले जाना